Hello everyone, this is Vibha. Students, today I am here with a new chapter after a break. You can see this is the chapter number 2 of class 5th. The book name is Milestone English Course Book. So what you can see on your screen, the name of the chapter is mentioned here. As you can easily see it, that the name of the chapter is It Could Happen. So first of all, I want to tell you the meaning of the topic. The meaning of this topic is it could happen means क्या कभी ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. So let us start the chapter. So we will see that what the author actually want to tell us. Let us start. May the first topic heading is let's begin. Suppose one day you woke up and found that everything had changed. Suppose कि आप एक दिन उठें, नींद से जागें तो दुनिया में सब कुछ चेंज हो चुका हो. ठीक है. इमेजिन वॉट योर रिएक्शन वुड बी. तो आप कल्पना करिए. इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना. कल्पना कीजिए कि उस समय आपका पहला रिएक्शन कैसे हाव भाव होंगे आपके. डिस्कस विद योर फ्रेंड वेदर इट वुड बी नाइस और नॉट. You have to discuss it with your friend whether your reaction will be correct or nice or your reaction will be not good. ठीक है. तो आपको अपने रिएक्शंस को अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस करना है. डू यू समटाइम्स इमेजिन द वर्ल्ड डिफरेंट फ्रॉम द वन विच यू आर लिविंग इन. द ऑथर सेज कि कभी आपने ऐसा इमेजिन करते हो कि जिस दुनिया में आप रह रहे हो उससे कोई अलग दुनिया आपको मिले देखने को, कुछ नया, समथिंग न्यू. ठीक है. तो वॉट are the things that you would like to change? Discuss. Author says that if you want any change, any different thing in your world where you still are living, so what changes you expected. आपको कौन से changes हैं जो आप चाहते हैं. ठीक है. So you have to discuss it with your friends. So from here the chapter story is started. Reading and comprehension. Here you can see that here what you can see, reading and comprehension. Now here the chapter reading is start. Let's read. First हमारा था let's begin and the second section is let's read. यहाँ पर आपको स्टोरी की रीडिंग करनी है. Let's read में आप क्या देखते हो. Students, one more thing I want to tell you. From this side there are meanings. ठीक है. ये हम one by one आपको बताते हुए चलेंगे. So read. Now read a story about the day when everything changed. हम यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर सब कुछ, जहाँ एक दिन ऐसा था जहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया था. एवरीथिंग चेंज. चेंज मीन्स बदल जाना. वन डे ओवरनाइट. एक दिन, ओवरनाइट मीन्स होता है क्लास रातों रात. एक दिन अचानक से रातों रात क्या हुआ. द वर्ल्ड टर्न वॉयलेट. अचानक से जो दुनिया थी वो कैसी, किस कलर में चेंज हो गई. वो अचानक से उसने एक कलर चेंज किया. जो कलर था, द कलर वॉज वॉयलेट. उन्होंने सारी दुनिया जो है वो समथिंग, जो भी चीज़ें थी वो किस कलर में टर्न हो चुकी थी. वॉयलेट कलर में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वॉयलेट. वॉयलेट मीन्स क्लास द डार्क पर्पल. यू कैन से एज द कलर ऑफ ब्रिंजल, एज यू ऑल सी एट योर होम. दैट व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्रिंजल. सो वन डे क्या हुआ, रातों रात ऐसा हुआ कि दुनिया में सभी चीज़ों का कलर बदल गया. और वो कलर कौन सा हुआ था. दैट कलर वॉज वॉयलेट. From the sky and the ocean and the mountains to the trees and the animals and the people and from the tallest skyscraper to the thinnest ant. ठीक है. तो वो कहते हैं कि किन किन चीज़ों का कलर बदल गया. स्काई, ओशन, माउंटेन, ट्रीज, एनिमल्स, पीपल and the tallest skyscraper. What is the meaning of skyscraper? As you can see here, skyscraper means होता है क्लास very tall building. जो ऊंची ऊंची हमारी जो इमारतें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, skyscrapers. ठीक है. skyscrapers से लेकर the thinnest ant. thinnest means टाइनेस्ट जो होती है हमारी सबसे छोटा जीव जिसको हम मानते हैं, जो आंट, चींटी होती है. ठीक है. तो सबसे ऊंची इमारत से लेके छोटी से छोटी जो चींटी थी, मीन्स हर चीज़ का जो कलर था वो कैसा हो चुका था, violet color का. The violet color is, you know very well, as I have told you, that the color of, just like the color of brinjal. Got it? So what happened then? We will see it. The people sat around looking at one another wondering if they were dreaming. जो लोग थे वो सभी लोग sat around, चारों तरफ घेर के एक दूसरे को बैठ गए and talk and looking at one another. क्लास one another मीन्स होता है एक दूसरे को देखने लगे.
वॉन्डरिंग मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना. अब दे वर ऑल सरप्राइज्ड इफ़ दे आर वर ड्रीमिंग, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई सपना देख रहे हैं. उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि डेली जब वो उठते थे तो दुनिया का कलर कुछ और होता था, दुनिया कैसी किसी और तरीके की उनको दिखती थी. टुडे देयर वॉज समथिंग डिफरेंट. यहाँ पर आज जो था वहाँ सब कुछ उन्हें अलग दिख रहा था, तो इसलिए दे ऑल वर सरप्राइज्ड. वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है. उसके बाद क्लास, बट nobody woke up and things stayed violet. लेकिन क्या हुआ कि उन लोगों को क्या फील हुआ कि किसी की भी आँख नहीं खुली. सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर कोई ड्रीम था ही नहीं, दैट वाज रियलिटी. क्योंकि रियलिटी में क्या हुआ था कि जो दुनिया थी उसका पूरा कलर चेंज होके वॉयलेट हो चुका था. ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या महसूस किया कि ये कोई सपना नहीं है, ये रियलिटी है. क्योंकि कोई भी अगर सपने में होता है तो वो जागता है तो उसको सामने फिर रियलिटी दिखने लगती है. इट वॉज the original thing that were changed. So people got it the idea that now no one is in dream, कि कोई भी सपने में नहीं है, ये सब कुछ रियलिटी में हो चुका है. ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ. All except for a single blue jay who had not changed colored and stayed at द ब्राइटेस्ट ब्लू. केवल वहाँ पर एक ही चीज़ बची थी जिसका कलर अभी भी उसको छोड़ के, एक्सेप्ट मीन्स होता है क्लास उसके अतिरिक्त, मतलब किसके अतिरिक्त, ब्लू जे. ब्लू जे मीन्स होती है एक बर्ड है, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. द ब्लू जे, आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ. अ स्मॉल नॉर्थ अमेरिकन बर्ड विद ब्राइट ब्लू बैक, जिसकी जो बैक होती है वो ब्लू कलर की होती है, ब्राइट ब्लू कलर की. ग्रे फ्रंट, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो ग्रे कलर का होता है. एंड ब्लैक एंड वाइट मार्किंग, और उसकी बॉडी पे जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के मार्क्स होते हैं. ठीक है, तो इस टाइप की एक जो बर्ड थी, पूरी दुनिया में सब कुछ चेंज हो चुका था, लेकिन ये जो बर्ड थी ये स्टिल अपने वही ब्राइटेस्ट ब्लू कलर में दिख रही थी अभी भी. उसके बाद क्या हुआ, बीइंग द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट वाज नॉट वॉयलेट, क्योंकि वो अब एक ऐसी अकेली चीज़ थी पूरी दुनिया में जो कि उसका डिफरेंट कलर था, जो कि वॉयलेट नहीं हुई थी. ही वॉज कॉट एंड पुट इन आ केव, उसको लोगों ने पकड़ा और उसको एक मतलब बिल्कुल देखने वाली चीज़ की, पूरी दुनिया जहाँ रंग बदल चुकी है वहाँ पे सिर्फ एक ऐसी चीज़ बची हुई है जो कि वॉयलेट है, वो वॉयलेट नहीं हुई है. तो उन लोगों ने क्या किया, उसको एक केज में उसको पकड़ा और उसको एक केज में ले जाके बंद करके रख लिया. उसके बाद देखिए क्या होता है. पीपल वर शॉक्ड मीन्स लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो रहे थे. सम वर एफ्रेड एंड सम वर अमेज्ड एंड फ्यू थॉट इट्स फनी. सब लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे थे, क्योंकि कुछ लोग शॉक्ड थे ये सब देख के, कुछ लोग एफ्रेड मीन्स होता है डरे हुए थे. सम वर अमेज्ड, कुछ लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे. एंड फ्यू थॉट इट इज़ फनी, और कुछ लोगों को क्या लगा, क्या मजाक हो गया, ये पूरी दुनिया बदल चुकी है, मतलब कलर ही चेंज हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. ठीक है, तो क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है, तो सब लोग उसको उस जो चेंज हुआ था पूरी दुनिया में उसको डिफरेंट वेज में देख रहे थे. बिकॉज along with everyone else the president was also very violet, क्योंकि सभी लोगों के साथ साथ जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनका भी कलर कैसा हो चुका था, वॉयलेट हो चुका था. ऑल द फैमिलीज़, जितनी भी फैमिलीज़ थी वर वॉयलेट, जितने भी फैमिलीज़ थे उसके मेम्बर्स थे वो सब कुछ लोग वॉयलेट हो चुके थे. एज वर टीचर्स, मूवी स्टार्स, डॉक्टर्स, नर्स, पेट्रोल पम्प अटेंडेंट्स, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, द प्रेसिडेंट ऑफ मोजाम्बिक, टैक्सी ड्राइवर, एवरीबडी. वहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर हो, पेट्रोल पंप अटेंडेंट हो, मतलब एवरी वन एवरीथिंग गॉट चेंज इट्स कलर दैट वाज वॉयलेट्स. हर चीज़ ने अपना रंग बदल दिया था, और जो कि किस कलर में चेंज हो चुकी थी, वॉयलेट. ठीक है, सो देखते हैं क्या हुआ. दे वेंट फ्रॉम place to place in their violet cars, the buses, and rode violet bikes and sat on violet furniture and ate violet food. वो जहाँ कहीं भी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपनी वॉयलेट कार में जाते थे. बस जो होती थी उनके भी कलर वॉयलेट हो चुके थे. रोड वॉयलेट बाइक्स, जो वो राइड, ये राइड की सेकंड फॉर्म है क्लास. राइड मीन्स होता है बाइक चलाना, राइड की सेकंड फॉर्म रॉड दी हुई है वहाँ पे. तो वो जो बाइक चलाते थे वो भी उनकी वॉयलेट कलर की हो चुकी थी. सेट ऑन अ वॉयलेट फर्नीचर, जिस फर्नीचर को वो यूज़ करते थे वो भी वॉयलेट कलर में चेंज हो चुका था. और फूड भी वॉयलेट ही वो खाते थे.
ठीक है. इवन कैंडी बार्स हैड टर्न ऑल वॉयलेट एज हैड चिप्स एंड चॉकलेट. कहने का मीन्स है जितने भी ईटेबल्स आइटम थे, चॉकलेट्स थे, चिप्स थे, कैंडीज थी, ऑल गॉट चेंज्ड. ठीक है. इट्स कलर, देयर कलर्स. गर्ल्स जनरली थॉट दिस यकी, क्योंकि कुछ गर्ल्स होती हैं उन्हें वायलेट कलर पसंद नहीं होता. यकी मीन्स देखो क्लास लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यकी. यकी मीन्स डिसगस्टिंग एंड अनप्लीजेंट. गर्ल्स को वो कलर पसंद नहीं आता तो वो कहती है या वाओ व्हाट द कलर, इट नाउ एवरीथिंग हैज़ वायलेट एंड वायलेट दे डोंट लाइक दैट कलर. बट सम बॉयज़ थॉट इट वॉज कूल. लेकिन कुछ बॉयज़ को वो कलर बहुत ही अच्छा लगता था. तो मैंने बोला ना, एवरी वन हैज़ इट्स ओन व्यू पॉइंट. सबका अपना अपना देखने का तरीका होता है. तो सब उस चेंज को अलग अलग तरीके से देख रहे थे. किसी को वो चीज़ अच्छी लग रही थी, किसी को वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी. ठीक है. कोई सरप्राइज था, कोई शॉक्ड था. ठीक है. उसके बाद क्लास देखिए हम क्या देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. The next paragraph tells us that the color of blue jay. ये blue jay कौन है क्लास? वही जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था. blue jay is a bird, जो जिसका कलर सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ एक वही बर्ड ऐसी थी जिसका कलर चेंज नहीं हुआ था. वो इट वॉज स्टिल इन ऑफ ब्लू कलर. वो अभी भी ब्लू कलर की ही दिख रही थी. इसलिए लोगों ने उसको क्या किया था, लोगों ने उसको पकड़ के एक केज में बंद कर लिया था, एक पिंजड़े में रख लिया था. बिकेम अ बिग इशू. यहाँ पर जो ये जो ब्लू जे जो बर्ड थी, ये भी एक बड़ा इशू बनी हुई थी. ये भी एक डिस्कशन का सब्जेक्ट बनी हुई थी. क्यों? बिकॉज he had such a little bit of blue and the bird had such a whole lot of violet. क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था इस धरती पे, यानी कि ये जो छोटी सी बर्ड थी वो सिर्फ ब्लू कलर की रह गई थी. बाकी पूरी दुनिया का कलर कैसा हो चुका था? वॉयलेट. पीपल आर्ग्यूड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट. और लोग उसकी भी इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया करते कि इसका ऐसा, इसमें ऐसा क्या वो था जिसकी वजह से इस बर्ड का कलर चेंज नहीं हुआ. Some said the jay must be very special bird or maybe not a bird at all because he alone had kept his true color. तो कुछ लोग वहाँ पे क्या कहते थे, ऐसा भी हो सकता है कि ये अकेली एक ऐसी बर्ड है जो कि हैड कैप्ट हिज ट्रू कलर. सिर्फ ये ऐसा एक प्राणी है, क्रिएचर है धरती पे जिसका ओरिजिनल कलर बचा हुआ है. बाकी और हर चीज़ ये कुछ स्पेशल वर्ड है. ठीक है. क्योंकि सिर्फ इसी का कलर ऐसा है जो कि बचा हुआ है, बाकी सभी का कलर चेंज हो गया है. अदर सैड दिस, वेट फॉर अ मिनट, दिस वॉज सिली. लेकिन कुछ लोग कहते थे ये भी अजीब सी मूर्खता सी चीज़ है कि पूरी दुनिया का जब चेंज हो गया कलर, तो सिर्फ ये एक छोटी सी बर्ड कैसे रह गई जो कि जिसका कलर चेंज हुआ. दैट द ब्लू जे एट बर्ड. फिर उन्होंने एक चीज़ और डिस्कस की आपस में. द ब्लू जे एट बर्ड सीड, कि ये जो ब्लू जे है इसने किसी चिड़िया के जो बीज होते हैं वो खाए. एंड ड्रैंक द वाटर एंड फ्लव्ड हिज फेदर, और अपने पानी पिया और अपने पंखों को फैलाया. एंड दैट अदर दैन हिज स्पेशल कलर, और इस वजह से उसका स्पेशल कलर है. ही वॉज स्टिल जस्ट अ बर्ड, लेकिन वो फिर भी एक बर्ड है. तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज, अपने परसेप्शंस के अकॉर्डिंग पीपल स्टार्टेड एजम्पशंस, क्रिएटेड एजम्पशन. उन्होंने अनुमान लगाना शुरू किया कि कुछ ऐसा हुआगा, ये वर्ड कुछ स्पेशल होगी, क्या इसमें कुछ और क्वालिटी है, या फिर ये भी सिंपल एक बर्ड ही है. लेकिन फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे कि व्हाट द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस. So class, I will stop the topic here. I will discuss the rest of the part of this story in my next video. So stay tuned with me. I have left it here, and join the second part of this story in my video. So I hope you will get the meaning from here. Thank you. Have a nice day.